Thank you. Madam, I speak here today on behalf of the NCPSP on electoral reforms. Sir, Madam, I would like to quote Shri G.V. Malvankar ji. A real democracy, one has to not merely look at the provision of the constitution, the rules and the regulations made for the conduct of the business in the legislature, but one has to foster the real democratic spirit in those who in the form of legislature. In this fundamental bond in mind, it will be clear that the question would be decided by majorities in parliamentary government will not be possible if it is reduced to a mere counting of head or hands. If we merely go only by majority, we shall be fostering the seeds of fascism, violence and revolt. This is what Mr. Malvankar has said in this parliament. Madam, why are we debating this? ये चर्चा की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसका कारण है कि इस देश में मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ, लेकिन ये वास्तव है, भले ये माने या ना माने, कृष्णा जी को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इस देश में अगर वो सारे पेपर और मैगजीन्स भी पढ़े, उन्होंने काफ़ी कोट किया आज कि सबके मन में एक बात है कि इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है, ऐसी एक सोच समाज में आज है। और इसका कारण क्या है? इसके छोटे में विक्षेप में कराना चाहती कि ECI has allowed its political neutrality to become under serious question. This is my first point. Second, model code of conduct is enforced unevenly and inconsistently. The commission has failed to curb hate speeches. I will explain each point in very short later. The appointed process has been totally and politically titled. The election commission has not kept pace with digital manipulation, deepfakes and targeted propaganda. मैं भी उसकी victim हूँ, मैं बताऊंगी उसके बारे में. Political parties routinely bypass expenditure limits and ECI looks away, unfortunately. Electoral roll errors continue disproportionately affecting urban poor, migrants and marginalized groups. VVPAT verification remains too small and opaque. Transfer of orders of officers during elections appear politically motivated, and above all, the Election Commission has not defended its own institution dignity with firmness even once, which is so unfortunate. And will the Commission protect democracy in this country, or will democracy has to protect itself, is the question I want to ask the Election Commission. Unfortunately, because I do appreciate Rajiv Ranjanji's point that Election Commission should have been an independent authority. It's not an arm of the government. But today, unfortunately, every attack, every criticism that comes, it looks like the impression their behaviors create that they are a part of the government, which is a very unfortunate thing. It's not healthy for any democracy in the world. It's really a shame. I'll give you a small example. Madam, इस सब के उदाहरण मैं एक ही इलेक्शन में बताऊंगी आपको. इलेक्शन फेयर होना चाहिए, सब की बात है. What is B.R. Ambedkar ji said? बाबा साहेब ने कहा है, I didn't give a weapon to my people, I gave a right to vote instead. Now it is in their hands whether to live like a legend by fighting or becoming a slave by selling it. This is B.R. Ambedkar जी का कोट है सर. और तब उन्होंने कहा था, उनको पता भी नहीं था इस देश ऐसे आगे बढ़ेगा. हमारे यहाँ मैडम पंचायत की इलेक्शन हुई है, यहाँ मस्के जी भी बैठे हैं, आप वेरीफाई कर सकते हैं. जो जो मैं आरोप नहीं कर रही हूँ, मैं वास्तव कह रही हूँ, पूरी चीज़ मैं ऑथेंटिकेट कर सकती हूँ. मैंने लाया है सब कागज मेरे साथ. क्या हुआ? पहले पंचायत में इतनी बड़ी सरकार आई, मैं नहीं कह रही हूँ, इनका कहना है कि मैं भी उसी मशीन पे चुन के आई हूँ, तो मैं VVPAT, ECI किसी पे नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरा कहना है अगर वो मशीन में गलती है तो मेरे से शुरू करिए, क्योंकि मैं 4 बार चुन के उसी मशीन के कारण आई हूँ. सो आई एम नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट द मशीन. आई एम मेकिंग अ वेरी लिमिटेड पॉइंट एंड विद ग्रेट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी, जिसको इतना बड़ा मैंडेट महाराष्ट्र में मिला. कैसे मिला उसके बारे में बाद में जाऊँगी, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ उनको कि इसी इलेक्शन कमीशन में न्यू पंचायत, नई सरकार, 200 MLA आए आउट ऑफ 288, सुप्रीम पावर. कौन पूछ रहा है उनको वहाँ? सब तो इन्हीं के सत्ता है, LOP भी नहीं है वहाँ. इतनी उनको भरोसा महाराष्ट्र की जनता दिया नहीं दिया कैसे वो तो अलग, वो आज चर्चा की बात नहीं है. लेकिन मानिए कि पूरा फेयर हुआ इलेक्शन, 200 MLA आ गए. उसके बाद जो पंचायत का इलेक्शन हुआ, पहली बार महाराष्ट्र के इतिहास में ऐसे हुआ है कि पहले फॉर्म में गड़बड़, उसके बाद विड्रॉल में गड़बड़, उसके बाद आरक्षण में गड़बड़, उसके बाद कैश मैंने नहीं पकड़ा. यहाँ जो बैठी हुई है, उनके जो मित्र पक्ष है, उनके ही एक MLA ने, उनके ही MLA, बीजेपी के एक MLA के साथ
वो उन्होंने आरोप किया। और शिवसेना जो मस्के जी उसके पार्ट है, उनके एक एमएलए ने घर में गए, किसके? भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के घर में गए और उन्होंने हार्ड कैश पकड़ाया, जो हर चैनल ने दिखाया। मैं आरोप नहीं कर रही हूँ, ऑथेंटिकेट पूरा कर सकती हूँ। हार्ड कैश। और ये एक एग्जाम्पल नहीं, ऐसे 10 मैं आपको बता सकती हूँ। तो पैसा भी बांटा गया। उसके बाद जिस तरह से भाषण करे, हमारी तो इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र में तो है ही नहीं मैडम, है होगी तो हमें तो पता नहीं कहा है। हम जाते मिलते नील बाय माउथ होते हैं ना, जिप, उन्होंने मौन व्रत रखा है, एक चीज नहीं बोलते। उसके बाद वायलेंस, महाराष्ट्र के इतिहास में आज तक कभी भी वायलेंस नहीं हुआ है, लेकिन बंदूकें भी दिखाई गई। किसने किसको बंदूक दिखाई मुझे नहीं पता, वो तो होम मिनिस्टर हमारे महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री बता सकते हैं। लेकिन गाड़ियां तोड़ी गई, पत्थर फेंके गए, बंदूक निकाली गई। ये कौन सा राज्य है? ये है ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। और उसके बाद ईवीएम के लॉक भी तोड़े गए, और ये सारा टीवी पे दिखाया। मैं आरोप नहीं कर रही हूँ, यहाँ मस्के जी भी बैठे, श्रीकांत शिंदे जी भी बैठे, उसी सरकार के पार्ट है। इनके ही लोगों ने ये सारे, मैं फिर से बोल रही हूँ मैडम, फॉर्म में गलती, विड्रॉल में करप्शन, आरक्षण में गड़बड़, कैश बांटा गया। मैं तो प्रधानमंत्री जी से विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि आप देश को एक दिशा देख रहे, आप ही की सरकार महाराष्ट्र में कुछ और ही करे जा रही है। नोटबंदी का मैडम आपको याद होगा, इसी हाउस में हमने नोटबंदी पास की। प्रधानमंत्री की क्या इच्छा थी कि इस देश से काला धन निकाल देंगे, पूरा जो भी होगा कैशलेस इंडिया हो जाएगा। अभी तक सरकार, मुझे अभी तक तो पता नहीं, मेरे दोस्त है शिव कुमार उदासी अभी हाउस में नहीं है, लेकिन उन्होंने सवाल किया था, तब मुझे चैलेंज किया था कि नोटबंदी में पैसा कितना गिनते, आज तक किसी को देश में पता नहीं कितना कैश आया इस देश में। तो ये कैश इनके पास, आपके पास नहीं है, हमारे किसी के पास कैश नहीं, बीजेपी के पास कैश मिला। और छोटा नहीं, बैग में नहीं मैडम, सूटकेसेस में मिला है, उसके वीडियो आए हैं। इसकी इंक्वायरी कब लगाएंगे? मैं मांग करती हूँ इस सरकार को कि ईडी और सीबीआई इसकी इंक्वायरी हो और जांच हो, ये कैश कहाँ से आती है। अगर ये कैश सरकार छाप नहीं रही है, डिजिटल इंडिया हो रहा है, तो इतना सारा कैश महाराष्ट्र में कैसे पकड़ा जाता है? कि ये खोटी झूठ वाली नोट है कि कौन सी नोट है कि नेपाल से है, ये पता नहीं है। इसकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए। This is a issue of not national, international. This is a big racket going on. और सिर्फ आरोप मैं नहीं कर रही हूँ, ये भी बैठे हैं यहाँ, इनको पूछ लीजिए आप, आपके मित्र पक्ष है, उन्होंने पकड़ा है। मैं तो उनको, राणे साहब शायद नहीं है, राणे साहब का बेटा नीलेश राणे हमारे साथ सांसद रहे। मैं आज ऑन रिकॉर्ड, भले वो शिवसेना में हो आज, लेकिन मैं उनका बहुत, उन्होंने जो किया उसका स्वागत करती हूँ। ये देशभक्ति का उदाहरण है, तो ये उदाहरण है देशभक्ति का नीलेश जी। वो भी सत्ता पक्ष में हो, फिर भी देश के लिए कैश पकड़ा गया। और इतना भी नहीं किया, वहां टीवी लेके गए, पूरे देश को दिखाया कि देखो बीजेपी क्या करी।